This is Prem Kumar Nair. I am here for you for the subject of taxation. सब घर पे है, लॉकडाउन में है. Very much confused about the subject. Very much confused about the topic to be covered. Everything, but you don't have to worry about anything till the time we are here, right? So taxation. What is taxation? What is the subject taxation? You may be aware about the term taxation. You maybe have heard before that, but this is the first time you are going to learn about taxation as an entire subject, right? So talking about the subject, what is taxation? Is it a theory subject or it's a practical subject? So basically, it's a practical subject, right? So how practical it is? It is entirely a practical, right? Like any other practical subjects like financial accounting or cost accounting or any practical subject, taxation is also an entire practical subject. Okay. So moving ahead, we should understand like what is the subject constraint of, what is the syllabus constraint of, everything, right? So what is taxation? Yeah. So before understanding the taxation, let's go through the technical aspects as per the exam point of view, right? So first we'll concentrate on the syllabus, right? So what is your syllabus contained? Now, what are the syllabus structure made of? So first of all, thing that I'll make you clear is you have to learn about direct taxation, right? There are two types of taxation. You may be knowing that there are two types of taxes. First is direct tax, second is indirect tax. You have to learn direct tax, and in that direct tax, you have to learn about the income tax, right? The personal income tax. So in income tax, there are many things that you have to learn. So these are the syllabus. Syllabus is right in front of you. So these are the chapters to be covered or topics to be covered in the entire semester 5. Okay. So semester 5. Semester 5's first topic is basic concepts. So section 1 to 4, you will be made clear with section 1 to 4, and it will be containing, it's a composition of what is taxation, what are the basic elements, right? Any other subject, like any other subject, before starting with the subject, you have to know about some terminologies. You have to know some of the concepts. You should be very clear with the concept. कुछ concepts के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो शायद आगे आपको बहुत बार आएगा, रिपीट होता जाएगा. So ये सब concepts को जानना जरूरी है. So you have to be very clear with it. So that is the very first chapter, basic concepts. Second chapter that is following is residence and scope of total income. That is section 5 to 6. So residence and scope of total income. What is in this chapter? It will make you know that in taxing, in computing of taxation, what are the basic elements to be known for? Like before taxing anything, before taxing any income, what are the elements to be notified? What are the elements to be specified? That is shown in the second chapter, that is residence and scope of total income. Third is heads of income. What are heads of income? You are maybe knowing that there are many types of income. There are many sources of earning income. So in taxation, as per the Income Tax Act, they have bifurcated such incomes into different heads to make it easier. Like there are heads like salary, so that entire salary account will be, entire salary types of salary will be maintained with that kind of head of income. There will be a type called as a business profession. There will be kind of something called as a capital gain relating to assets. So there are different heads of income, making you understand that what type of income, what classification of income is to be made before computing the taxable income, right? Next is your salaries. Now, heads of income. After heads of income, you are making known about the income from salary. Now, what are the income from salary? Income from salary is a head of income. Income from salary is a head of income. You will be getting arranged with, you will be getting knowledge with the heads of income. आपको heads of income के अंदर का क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि heads of income में कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो आपको उसी के बारे में इन डिटेल में पढ़ना है. तो उसमें से पहला चैप्टर है, या पहला हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 17. The next head of income will be house property. अब सैलरी जैसे होगा वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी भी है. हाउस प्रॉपर्टी में हाउस के रिलेटेड, घर के रिलेटेड जो भी टॉप इनकम रहेगा उसके बारे में हाउस प्रॉपर्टी में लिखा जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज
प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी करके बोला जाता है, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। द कंटेंट इज बिजनेस करने वाला पर्सन या फिर प्रोफेशनल पर्सन जो भी रहेगा, उनको जो इनकम आता है वो इनकम का जरिया क्या क्या है, क्या क्या सोर्सेस है, उसमें से क्या टैक्स करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा। सेवेंथ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एज आई सेड अर्लियर, कैपिटल गेन, कैपिटल मींस एसेट, assets, अगर कोई भी assets आपके पास है, if you are selling that asset in a particular year, what are the calculations to be made in that part is the capital gain. Next is your income from other sources. Income from other sources आपको क्या बताता है? Income from other sources एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिसका रेसिडुअल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर इनकम, अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन अगर उसमें अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस उस जगह पे हम यूज करेंगे अदर सोर्सेस को। नेक्स्ट इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज दिस डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम? डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का कंसेप्ट ये है कि आपको कुछ फायदा दिया जाता है, आपके एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे, आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको बोला जाएगा कि कुछ चीजों के ऊपर आपको टैक्स को कम भरना है, या फिर टैक्सेबल इनकम जो है वो आपको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। दैट इज नोन एज दैट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ डिडक्शन। सो देयर आर सर्टेन डिडक्शंस, कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पे तुम लोग आपको एक तरीके का बेनिफिट दिया जाएगा। सो दैट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। The final chapter is computation of total income. Now, the computation of total income is the main practical chapter. अब computation of total income को पढ़ने के लिए ही बाकी सारे chapters पढ़ाया जाता है। आपको अगर computation of total income करना है, like for example, if you want to write a sentence, you should know the alphabets, you should know the letters carefully, properly, then you should know the words properly, and then only you can prepare a sentence. In the same way, आपको पूरा चैप्टर्स यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, डिडक्शंस वगैरह सब चैप्टर्स अगर आपको पता है, then there is the only chance when you can solve the computation of total income. So computation of total income का एक बेस, it's a final chapter, अगर उसको वो अगर आपको सॉल्व करना है, तो in that case you have to be very much clear with the earlier topics. Yeah? So this is your syllabus that is set for you. तो यहाँ पे ये जो सिलेबस आपके पास है, ये आधा सिलेबस है। आधा सिलेबस मतलब इसके बाद भी है क्या? इसके बाद जो सिलेबस जो है या फिर इसके पास जो कंटेंट है वो आपको पढ़ने के लिए नहीं है, बट डायरेक्ट टैक्सेशन के कंसेप्ट के हिसाब से व्हाट यू आर लर्निंग इन दिस 10 चैप्टर्स इज जस्ट द हाफ ऑफ इट। और उस हाफ में भी आपको कुछ चूजी टॉपिक्स है जो आपको सीखना है, जो बहुत बार रिपीट होता है, ऐसे कंसेप्ट्स को ही आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। सो व्हाट अगेन गोइंग टुवर्ड्स द सिलेबस, आपका जो पहला टॉपिक है जिसमें मार्क करके बता देता है आपको, जो पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये एंटायरली थियोरी है, इसके बेसिस में आपको ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा आने का चांसेस ज्यादा पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स, थियोरी, ये सब चीजें के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको इधर डेफिनेशंस मिलेंगे। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में अगेन आपको एक प्रैक्टिकल टॉपिक है वहां पे, दो टर्म्स में आने के चांसेस ज्यादा रहता है। हेड्स ऑफ इनकम में बहुत छोटा चैप्टर है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो। फिर नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रैक्टिकल चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकल चैप्टर, बिजनेस प्रोफेशन, प्रैक्टिकल, कैपिटल गेन प्रैक्टिकल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस प्रैक्टिकल। डिडक्शंस अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये सबको कंबाइन करके, यानी आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी है प्लस हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन प्लस बिजनेस प्रोफेशन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड डिडक्शन, ये सबको कंबाइन करके आपको सॉल्व करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। दिस इज व्हाट द एंटायर सिलेबस इज। सो क्वेश्चन अराइज ये होता है, हर बार स्टूडेंट्स में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सिर्फ सैलरी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या?
देयर आर चांस, वी कैन नॉट से दैट ऐसा कोई चांस ही नहीं कि सिर्फ सैलरी के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, बट मोस्ट लाइकली जब आता है कोई कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान देना कि वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस प्रोफेशन, किसी भी तरीके का मिक्सअप टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन मोस्टली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बेसिस में आता है, इंडिविजुअल बेसिस में क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर है। आया है, आने का चांसेस भी है, बट रेयर चांस, वी कैन नॉट से दैट एंटायरली वो आने का चांसेस रहता है करके। दिस इज अबाउट व्हाट द सिलेबस इज मेड फॉर यू, क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब हर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है या फिर उनके लिए एक क्वेरी रहता है कि पेपर कैसे बनेगा, पेपर कैसा आता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर। सो एवरीवन नोज दैट यू हैव अ 100 मार्क पेपर। टीवाई बीकॉम के सेम प्राइम अगर बैठते हो तो सीधी सी बात है, आपका जो पेपर है इट विल बी कंटेनिंग 100 मार्क पेपर, मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेट। सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपको किस तरीके से सेट किया जाता है या फिर किस तरीके से उसका पेपर पैटर्न बनाया जाता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टू स्टार्ट विद इज क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है? सो ऑब्जेक्टिव कंटेंट ऑफ एमसीक्यूज, multiple choice questions, match the columns, true or false, fill in the blanks, etc. तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में। ये चारों ऑप्शन में से किसी कोई भी एक ऑप्शन लोग चूज कर सकता है। ऐसे आपको 2 आएंगे, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। ऐसे दो ऑप्शन है, ए और बी। ये दोनों भी सॉल्व करना है हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में। ए में आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 10 करना है। सेम वे बी पॉइंट में भी आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 10 करना है। अब ये बोला है कि आंसर एनी 10 आउट ऑफ 12, आंसर एनी 10 ऑफ 12। अब वो 10 जो क्वेश्चन जो ए में पूछा जाएगा, ए में एमसीक्यू हो सकता है, बी में मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ए में ट्रू और फॉल्स हो सकता है, बी में फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन। ये चारों का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रेफरेबली पूछा गया था, इट इज ऑलवेज एमसीक्यू एंड ट्रू और फॉल्स, बट वी कैन नॉट अवॉइड द चांसेस ऑफ आस्किंग द अदर टॉपिक्स टू। सो चारों प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी मस्ट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आपको 20 मार्क्स, यस 20 मार्क्स आपको लाकर दे सकता है। क्लियर? दैट इज द हाफ ऑफ द मिनिमम मार्क्स। हाफ ऑफ मिनिमम मार्क्स आपको डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही लाकर देता है। मूविंग अहेड, गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इट इज आस्किंग फॉर अ व्होपिंग 20 मार्क्स। डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। अब 20 मार्क्स के लिए सिंगल क्वेश्चन आता है क्या? 95% केसेस में यस 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आता है, लेकिन दे कैन बाइफर्केट। देयर इज ऑल काइंड ऑफ अ प्रोविजन कि आप उस क्वेश्चन को बाइफर्केट कर सकते हैं। वी कैन नॉट अवॉइड द केसेस, बट या 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो फुल फ्लेज एक सिंगल क्वेश्चन बनता है। सो क्वेश्चन में क्या आ सकता है? मोस्ट प्रेफरेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंक्लूडिंग सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। यानी आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में सैलरी होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा और डिडक्शन होगा। इसके कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है। दैट इज अगेन अ 20 मार्क क्वेश्चन। उसके ऑप्शन में और मैं आपको और एक क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B, ऐसे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A अगेन इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2B अगेन इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट वहां पे बाइफर्केशन है 10 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन बाइफर्केटेड है, ये क्वेश्चंस को लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। मींस दे कैन मेक इट समथिंग अप, गो समथिंग डाउन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो क्वेश्चन नंबर 2A 2B इट कैन इंक्लूड सैलरी प्लस डिडक्शन, वैसे ही यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी प्लस डिडक्शन। दैट इज मोस्ट लाइकली पैटर्न दैट दे फॉलो। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से अगर मैं बात करेगा तो इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक जगह पे आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन के ऑप्शन, फुल फ्लैश क्वेश्चन देंगे और उसके ऑप्शन में आपको एक छोटा क्वेश्चन भी देने का चांसेस रहता है। क्लियर? सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3B प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 में रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो टॉपिक है, उसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन आएगा दैट अगेन कंटेन 10 मार्क्स। सो इंक्लूड्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B कैपिटल गेन अहेड ऑफ इनकम।
इकलौता एक हेड ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन एक ऐसा इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम है जिसके बेसिस में इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। rather than that, इसके अलावा बाकी जो भी हेड्स ऑफ इनकम है उसका इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आता है, उसके सबके कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल गेन प्रेफरेबली लोग एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगेन फॉर अ 10 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 3A अगर देखा जाएगा तो इट इज फॉर 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ईच। क्लियर? अब उसके ऑप्शन में क्या है? उसके ऑप्शन में अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 3C, क्वेश्चन नंबर 3D ऐसा दो क्वेश्चन है। अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, which includes residential status. Again practical question, it includes capital gain. So practical questions के बेसिस पे अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है, अगेन उसके ऑप्शन में कैपिटल गेन। जैसे मैंने पहले बोला, स्कोप ऑफ इनकम के जो ऑप्शन में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस दिया था, अगेन इट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन होगा और उसके साथ में होगा कैपिटल गेन। ये ऑप्शन में आएगा किसके? कैपिटल गेन प्लस स्कोप ऑफ टोटल इनकम के, अगेन फॉर 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स दे सकते हो, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ? क्वेश्चन नंबर 4 designates again practical questions. So question number 4 again designates practical questions. Again question number 4 practical questions. Now अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बीच में देयर इज एन ऑप्शन बिहाइंड बिटवीन इट। सो आपको या तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वरना अदरवाइज दिस वन। सो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज इंक्लूड्स बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस एंड डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, जो अगेन आपका 20 मार्क का क्वेश्चन होगा। उसके ऑप्शन में आपको करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगेन विच इंक्लूड्स प्रोफेशन, सैलरी, अदर सोर्सेस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, विच इज अगेन कंस्ट्रेंट टू 20 मार्क्स। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऑप्शन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगेन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह पे आपको बिजनेस है, दूसरी जगह पे आपको प्रोफेशन है। अब ये जो कॉम्बिनेशन जो आपको पता है बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, डिडक्शन, ये ऐसे ही आना जरूरी नहीं है। बिजनेस के साथ सैलरी भी आ सकता है, बट नॉर्मली बिजनेस के साथ हाउस प्रॉपर्टी आता है, अदर सोर्सेज तो जैसे नॉर्मल लाइकली चैप्टर्स है, फिर डिडक्शंस तो आना है। वैसे प्रोफेशन के साथ मोस्ट लाइकली सैलरी आता है, बट इट डजंट मीन दैट कि प्रोफेशन के साथ सैलरी के अलावा और कुछ नहीं आएगा, आ सकता है, दूसरे भी आ सकता है, बट मोस्ट लाइकली सैलरी आने का चांसेस है। नेक्स्ट इज चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5A 5B, इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन नंबर 5 इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5A थियोरी क्वेश्चन विच लॉन्ग आंसर्स के लिए डायरेक्टली जो आपको 10 मार्क्स ला देगा यहाँ पे। सेम वे क्वेश्चन नंबर 5B again it gives you you have to answer as a long answer, जो आपको अगेन आपको 20 मार्क्स 10 मार्क्स ला कर देगा। इसके ऑप्शन है और you have to go for question number 5 that will be short notes। शॉर्ट नोट्स में कैसा है? शॉर्ट नोट्स में यू हैव ऑप्शंस। यहाँ पे 5A और B में आपके पास ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट टू आंसर अ लॉन्ग आंसर यू हैव टू आंसर द सेम क्वेश्चन, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर जब बात शॉर्ट नोट्स का आता है तो शॉर्ट नोट्स में आपको 6 शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 4, हर एक का 5 मार्क्स, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स। सो शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने में आपको आपके पास ऑप्शंस है, और इफ यू आर वेरी थरो, अगर आपका ब्रीफ आंसर थरो है, जो भी दोनों क्वेश्चंस है अच्छे तरीके से आता है, तब जाके हम थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स वुड बी द बेटर वन। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न entirely। So question paper patterns में ये सब चीजें आपको clearly समझना है। First question number 1 is your objectives, second is a practical question, third is a practical question, fourth again is a practical question, and fifth becomes your theory question। So practical हो या theory questions दोनों has an equal weightage। अगर आप देखिएगा तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क्स का है, लास्ट क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन है, अगेन इट्स 20 मार्क्स। सो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज जस्ट इनफ। अगर उसके आगे आप पढ़ भी लेते हो तो आपको बाकी का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना बहुत सिंपल है, बट इसी रीजन की वजह से थियरी और ऑब्जेक्टिव्स को लोग छोड़ते हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि आप छोड़ सकता है। यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद योर ऑब्जेक्टिव्स एंड थियरी, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा चैप्टर है या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थियरी बैकअप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्या बताए? सो दिस इज योर सिलेबस।
and your question paper pattern. Moving ahead to chapter number 1, the basic concepts. अब बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको क्या समझाना है या फिर क्या समझना है? बेसिक कंसेप्ट में आपको कुछ चीजें बताया जाएगा कि व्हाट आर समथिंग, व्हाट आर दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड, व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड, ये सब चीजें आपको क्लियरली समझाया जाता है. क्लियर? सो मूविंग अहेड, व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड. फर्स्ट जो आपको समझाया जाएगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन. सबसे पहले आपको समझाया जाएगा कि टैक्सेशन क्या है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज एंटायरली न्यू फॉर यू. सो अगर एक सब्जेक्ट सबसे एकदम से ही नया है, टोटली नया है आपके लिए, इन दैट केस यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट. आपको इसको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट कंटेंट इज इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन इन द फर्स्ट चैप्टर. सेकंड जो आपको सिखाया जाएगा दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इट्स स्कोप एज पर सेक्शन 1. सो 1961 एक्ट है इनकम टैक्स का. सो 1961 का जो एक्ट है इनकम टैक्स का, वो क्या है, वो क्या आपको बताता है? What are the concepts involved in it? What are the laws involved in it? What are the rules to be followed? What are the authorities to be assigned? Everything is in the Income Tax Act 1961. और उसके रिलेटेड उसका जो एरिया वाइडनेस क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है, ये सब चीजें आता है आपका कंटेंट नंबर 2 तक. नेक्स्ट इज डेफिनेशंस. डेफिनेशन इज नॉट एक्चुअली अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, बट यहाँ पे डेफिनेशंस में आपको ये समझाने की पॉइंट है कि टैक्सेशन में, इनफैक्ट बाकी जगह पे भी हो सकता है, बट टैक्सेशन में लोग क्लियरली बताता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस. वन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड वन इज एक्सक्लूसिव डेफिनेशन. अब क्या है इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड क्या है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन? जब कोई डेफिनेशन को एकदम क्लियरली बता सकता है इन स्टेटमेंट्स, अगर कोई चीज को समझाया जा सकता है इन स्टेटमेंट्स कंप्लीटली, उस स्टेटमेंट के अलावा वो चीज कुछ नहीं है, नथिंग मोर नथिंग लेस. If you have to be if you have to identify something, if you have to define something, वो definition पूरा है, complete है, 100% है, absolute है. In that case उसको बोला जाता है exclusive definition. Definition उसके आगे या उसके पीछे कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं. ऐसे definitions को exclusive definition बोला जाता है. लेकिन there are some cases, some elements that cannot be defined exclusively. पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता. ऐसे टाइम पे आपको जरूरत पड़ता है इंक्लूसिव डेफिनेशन का. अब व्हाट इज दिस इंक्लूसिव डेफिनेशन? इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जब हम लोग को कुछ चीजें डिफाइन किया है, कुछ स्टेटमेंट कहा गया है, बट ये स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ चीजें आपको इंक्लूड करना पड़ता है. आपको जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा, फिर ये चीज भी इंक्लूड कर लो, जब बोला जाता है दैट बिकम्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. When you have to include something towards inside the definition, that is known as your inclusive definition. So the 2 टाइप का definitions है. आपको इसके बारे में इतना डिटेल के बारे में जानना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि there are 2 types of definitions in income tax act. So ऐसे टाइप में आपको कुछ definitions पढ़ना है. तो पहला definition जो आपको पढ़ना है that is about the assessment year as per section 2(9). सेक्शन 2(9) में assessment year को कैसे डिफाइन किया है वो देखना है. नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर के बारे में क्या बोला गया है वो देखना है, उसका प्रोविजंस क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर टैक्स का कोर है, बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा या फिर वो आपने क्लियर नहीं किया है, आपका पूरा प्रोविजंस गलत हो सकता है. अब ईयर समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना पिवटल क्यों है? तो रादर सिंपल आंसर है टैक्सेशन का रूल, डायरेक्ट टैक्सेशन का रूल, देयर आर ऑल काइंड ऑफ चांसेस कि वो हर साल बदलता है. प्रोविजंस में या फिर सर्कुलर्स के थ्रू कैसे भी हो, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है. सो वो चेंजेस अप्लाई करना है या नहीं करना है वो ईयर पे डिपेंड करता है. ये साल जो सर्कुलर्स आए या फिर ये साल जो प्रोविजन में जो चेंजेस आया, वो प्रोविजन का चेंजेस ये साल अप्लाई नहीं किया जाएगा, वो अगले साल अप्लाई किया जाएगा. उसका जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो अगले साल किया जाएगा. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका जो इनकम आया है वो ये साल का है या वो अगले साल का है. ये साल का प्रोविजन, ये साल का इनकम रहेगा तो उस पर वो अप्लाई होगा नहीं, अगले साल का रहेगा तो उसमें अप्लाई होगा. सो ये समझने के लिए यू नीड टू वेरी मच वेल वर्स्ड विद व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. सो ईयर इज इंपॉर्टेंट. ईयर अगर आपका गलत है, ईयर का आइडेंटिफिकेशन आपका गलत है, तो आपका पूरा प्रोविजन गलत हो सकता है. नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पर्सन. हु इज अ पर्सन? पर्सन किसको कहा
आ जाता है। अभी पर्सन मतलब क्या है, ऐसा नॉर्मल जनरल लैंग्वेज हम जानते हैं, बट दैट इज नॉट एंटायरली व्हाट इज अ पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन क्या है, सेक्शन 231 में क्या बोला गया है, तो आपको वो समझना है। 231 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, उसमें क्या बोला गया है ये आपको समझना है कि पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या है, ये देखना है। नेक्स्ट इज इनकम। एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनकम मतलब क्या है, इनकम के अंदर क्या क्या आता है, ये सब चीजें आएगा इनकम अंडर सेक्शन 224। नेक्स्ट इज असेसमेंट अंडर सेक्शन 28। सो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट ये जो वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, असेसमेंट का मतलब क्या है। जैसे आपने पहले देखा कि असेसमेंट ईयर होता है, तो असेसमेंट ईयर है तो असेसमेंट क्या है वो। उसके बाद एसएससी क्या है, एसएससी क्या है या एसएससी कौन है, एसएससी क्यों है वगैरह एक्सेट्रा चीजें है, दैट इज सेक्शन 27 डिफाइन करता है एसएससी को। ये डेफिनेशन होने के बाद नेक्स्ट आपको मूव करना है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स पर। सो व्हाट इज दिस चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अगर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात करेगा तो कि अगर आपके पास इनकम है तो इनकम के ऊपर टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, किस तरीके से चार्ज करना है, क्या टैक्स लेना है या नहीं लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इनकम, मेनी टाइप्स ऑफ इनकम, मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम, जहां से आने की वजह से या फिर उस टाइप के इनकम होने की वजह से उसके ऊपर पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, तो दैट इज चार्जिंग ऑफ इनकम। तो अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर बताएगा, तो अगर एग्रीकल्चर के इनकम है आपका, सो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम है तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एज अ शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, एक प्रोविजन के बाद उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, बट नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता नहीं है। लेकिन वही अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में देगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज चार्जिंग, दैट अ पर्टिकुलर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स इज टू बी चार्ज विद टैक्सेशन और नॉट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। टॉकिंग अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, दैट विल बी द एंड पार्ट। लाइक कि अगर तुम्हारे पास इनकम है, चार्ज किया, कि चार्ज करना मतलब कैसे कि आपको उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना है, ये एक बार हो गया। सो देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। जो टैक्स चार्ज करना है वो आपको टैक्स में लिखना है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करना है उसको उसको लिस्ट से बाहर निकालना है। ऐसे जो कैलकुलेशन है दैट इज नोन एज कंप्यूटेशन। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, सो दिस इज ये 5 टॉपिक्स है जो आपको चैप्टर नंबर 1 में कवर किया जाएगा। सो फर्स्ट यू विल बी मेड अंडरस्टूड विद व्हाट इज टैक्सेशन, then you will be made understood what is income tax act 1961 and its scope, क्या एरिया है, क्या उसका एप्लीकेशन एरिया क्या है। फिर आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाया जाएगा जैसे कि असेसमेंट या प्रीवियस ईयर, पर्सन, इनकम, असेसमेंट, एसएससी। उसके बाद चार्ज ऑफ इनकम एंड नेक्स्ट विल बी योर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ाया जाएगा। सो एज फॉर द फर्स्ट सेशन दिस वुड बी इनफ कि लाइक आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको जो टॉपिक है, जो आपका मेन कंसेप्ट है, वो मेन कंसेप्ट में, मेन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करने से पहले ये जस्ट एक ब्रीफिंग था या फिर एक अंडरस्टैंडिंग था कि आपको क्या है पढ़ने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते टाइम पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।